بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ عوام کی سوچ کے ساتھ میں ہوں خالدہ راجہ، ایک بار پھر حاضر ہوئی ہوں عوام کی سوچ میں، عوام سے جاننے کے لیے کہ حکومت کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگائی جا رہی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ عوام کیا کہتی ہے کہ تحریک انصاف پر پابندی لگنی چاہیے یا نہیں۔ آئیے عوام سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی السلام سر، کیا نام ہے آپ کا؟ جی شیراز جنجو ایڈوکیٹ۔ شیراز صاحب، ایسا ہے کہ حکومت کی جانب سے پی ٹی آئی پہ پابندی لگنے جا رہی ہے کچھ غداری کے مقدمات بنا کے، کیا کہیں گے اس حوالے سے آپ؟ جی عطا طارر صاحب جو ہیں وزیر جو ان کے انفارمیشن ہیں، ان کی پریس کانفرنس ہوئی تھی، لیکن اس کے بعد سے کوئی پیپلز پارٹی نے یا MQM کی طرف سے کوئی ایسا نہیں کہا گیا کہ وہ بھی ان کے ساتھ ہیں، اور رانا ثناء اللہ نے بھی اور خواجہ آصف نے بھی یہ کہا ہے کہ وہ ابھی تک جو ہے وہ یہ بات ڈیسائیڈڈ نہیں ہے، لیکن کچھ چیزیں جو نظر آ رہی ہیں اس حساب سے کہ وہ جس طرح سے ابھی شہداء ہو رہے ہیں KPK میں ہو رہے ہیں، اس طرح کے بم بلاسٹ میں ہو رہے ہیں، ان کے اوپر سے PTI کی طرف سے کوئی بھی مزاحمت نہیں آ رہی، مطلب وہ سائلنٹ موڈ میں ہیں، تو اس سے لگتا ہے کہ کوئی ان کو اس پہ خوش ہیں۔ تو اگر ملک میں کوئی ایسا کوئی بھی فوجی ہے، وہ ماؤں کا بیٹے ہیں، وہ شہید ہو رہے ہیں، کوئی بلی کا بچہ یا اس پہ بھی بندہ جو ہے بڑی افسوس ہوتا ہے، تو انسان کے بچے ہیں، شہید ہیں، پاکستانی ہیں، تو ان کے اوپر افسوس ہونا چاہیے۔ اور اس طرح کی اور بھی کچھ چیزیں ہیں، جیسے 9 مئی والا واقعہ ہے یا اور طرح سے بیانات اگر آ رہے ہیں، تو اپوزیشن اور یہ تو بلی چوہے کی جنگ۔ اتحادی جماعتوں نے بھی اس حوالے سے کہا ہے کہ ہم سے مشاورت نہیں کی گئی، تو اگر اتحادی جماعتیں نہ ساتھ دیں تو کیا پھر پابندی لگ سکتی ہے؟ اتحادی جماعتیں بھائی اپوز کریں گی اس کو، لیکن اگر اسمبلی میں پاس ہو جاتا ہے تو پھر تو ہو ہی جائے گا کہ پابندی کی طرف اگر جاتے ہیں تو، لیکن ابھی تک کوئی نظر نہیں آ رہا، کوئی چانسز 50% 51% بھی نظر نہیں آ رہے، لیکن اگر لگانا چاہیں تو وہ پاور میں جو ہوتا ہے وہ کر سکتا ہے۔ PTI بھی کرتی رہی ہے، وہ جب وہ پاور میں تھے تو وہ رانا ثناء اللہ کو بھی اندر رکھا اور احسن کو بھی اندر رکھا، سب کے اوپر کیسز بنے، تو جس کے بعد پاور ہوتی ہے وہ اپنی پاور کو مس یوز تو کرتے ہیں پاکستان۔ سر، یہ مختلف جماعتوں کی طرف سے جو دھرنے دیے جاتے ہیں، اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ یہ دھرنے کی سیاست ہونی چاہیے یا نہیں؟ دھرنا اگر کوئی آپ کا ایسا رائٹ ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ، پچھلے دنوں جماعت اسلامی نے دھرنا دیا، آج کل لبیک والے نے دیا ہوا ہے، ابھی پھر 26 کو پھر سے جماعت اسلامی آ رہی ہے۔ کچھ تو پلانٹڈ ہوتے ہیں، جیسے لبیک کا پہلے والا تھا، اس کے اوپر ابھی تک جو ہے وہ کمیٹیاں بنی ہیں، اس کا رزلٹ ابھی تک نہیں نکلا، اور طاہر القادری صاحب نے ایک دھرنا کیا تھا عمران خان صاحب کے ساتھ مل کے، کزنز بھی بنے تھے، اس کا بھی کوئی رزلٹ نہیں نکلا، نون لیگ نے بھی کیے تھے، پیپلز پارٹی نے بھی کیے تھے، تو ان کے رزلٹ نہیں نکلتے، تو لیکن یہ ہے کہ ملک کو نقصان ہوتا ہے، لوگ ملک کا نہیں سوچتے، ایز اے ہول نہیں سوچتے، اپنا پرسنلی فائدے کے لیے دھرنے دیے جاتے ہیں، ملک کے لیے نہیں دیے جاتے کہ وہ بجلی مہنگی ہو رہی ہے، کسی کو کسی سے کوئی سروکار نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ حکومت ناکام ہو جائے، دوسرا ناکام ہو جائے، مجھے جو کوئی فائدہ ہو جائے، لیکن تو اسے من اصل قوم ہمیں جو ہے ملک کا سوچنا پڑے گا، تو ہر کوئی اگر پرسنل کھیلے گا تو پھر اس میں رزلٹ اچھا نہیں آنا۔ PTI پہ حکومت پابندی لگا رہی ہے، کیا کہیں گے؟ زیادتی کر رہے ہیں، نہیں ہونی چاہیے، تو کہہ رہے ہیں ان کے اوپر دہشت گردی کی دفعات بھی لگائیں گے 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے۔ یہ وہ آپ ڈر رہے ہیں نا، اس لیے لگا رہے ہیں۔ کون ڈر رہا ہے؟ نون پارٹی ڈر رہی ہے۔ کس لیے ڈرے گی پارٹی؟ کیوں؟ جن ان کو پتہ ہے ان کے دن پٹھے آنے والے ہیں۔ تو اگر پابندی نہ لگائی تو پھر کیا ہوگا؟ کیا ہوئے گا؟ دوبارہ آئے گا نا، اپنے ملک پہ آئے گا واپس، اس کا حق بنتا آنا چاہیے اس کو۔ تو آپ کیا کہتے ہیں، عمران خان واپس آئے گا باہر جیل سے؟ جی انشاءاللہ واپس آئے گا۔ پیر صاحب، حکومت کی جانب سے PTI پہ پابندی لگائی جا رہی ہے، دہشت گردی کی دفعات کے تحت بھی اور امن امان کے حوالے سے بھی، کیا کہیں گے؟ بالکل ضروری ہے، لگانی چاہیے، اور PTI ایسی دہشت گرد جماعت ہے، انہوں نے اختلافات پیدا کیے اور ماحول خراب کیے، بہت ضروری ہے، پابندی لگنی چاہیے اس جماعت میں۔ تمام جماعت والے جو ہے وہ تہذیب کے دائرے سے باہر نکل چکے ہیں۔ سر، اگر یہ سلسلہ شروع ہو گیا تو کل کو کوئی اور جماعت آئے گی، وہ نون لیگ پہ لگا دے گی یا پیپلز پارٹی پہ لگا دے گی؟ نون لیگ تو فیل ہو چکی ہے، یہ حکومت فیل ہو چکی ہے، جو بھی حکومت ہو، اگر ایسی بد تہذیبی اسے ماشاء اللہ بہتر ہے۔ فوج کو ہم چاہتے ہیں وہ ابھی آ جائے، 10 سال ان سیاستدانوں کا احتساب کرے، وہ ضروری ہے۔ کیا برائی ہے نون لیگ میں یا پیپلز پارٹی میں؟ نون لیگ والے تو یہ سلیکٹ کیے ہوا ہیں، ٹھیک ہے، ملک میں دیکھیں بجلی کا کتنا بحران ہے، کوئی ان کے ٹیکس یہ سارے کون پے کرتا ہے؟ غریب عوام جو ہے باہر نہیں نکلتی،
अब हमारा बिजली का बिल आया 20,000 रुपया, पहले ही जमा करवा दिया। हम भी ऐसे हैं कि हमें सड़कों पे निकलना चाहिए। और जो ये है पेट्रोल का मामला है, अब देखिए कहाँ पहुँच गए, 10 रुपये परसों से ये सर इतनी महंगाई हुई है, मैंने नहीं देखा कि कोई आवाम सड़कों पे निकली हो, तो फिर गलती तो आवाम से आवाम की है ना। आवाम को निकलने देते ही नहीं है। आवाम तो बेचारे क्या करें। अब जो जिस दिन कारोबार सर आवाम निकली थी और हुकूमत ने उन पे पथराव किया था या पकड़ा था या जेल में बंद किया था, मैंने तो नहीं देखा कि आवाम निकली हो। लेकिन लीडर के बगैर आवाम निकले, लीडर जो है सियासत कर रहे हैं, एक निकालता है दूसरा बैठा देता है। सर आवाम अपना लीडर खुद क्यों नहीं बना लेती थी? आवाम का लीडर अवामी लीडर है ही नहीं यहाँ पे। यहाँ मसाइल हैं, पाकिस्तान में सबसे बड़े मसाइल हैं, अवामी लीडर को मैं जो इस वक्त महंगाई हो रही है, इस पे आप मुझे बताएं कौन कसूरवार है? आवाम ही है, मैं कहता हूँ, खुद है। ठीक है। और इन सियासतदानों के लिए मार्शल लॉ ज़रूरी है, फौज का होना ज़रूरी है। हम लोगों में कश्मीरियों वाला जिगरा नहीं रहा। कश्मीरी वाला क्यों ना, कश्मीरियों ने अपने मुतालबात मंजूर करवा लिए। देखें, दो चार जानें ज़ाया होंगी तो फिर जाके इनकलाब आएगा, ऐसे तो इनकलाब नहीं आ सकता। हम घर में बैठे रहें, मक्खन भी खाते रहें, चूरियाँ भी खाते रहें और कहें बाहर कोई दूसरा शहीद हो, ये नहीं। आगे निकलेंगे, इस मुल्क की हालात बदलने के लिए हमको बाहर निकलना है, ठीक है। और जहाद करना है और निकलना है। इन ये शायद एल में आपको बताता हूँ, जरदारी साहब एल हैं, वो हमारे जो अभी सदर बने हुए हैं, वो एल हैं हमारे, वो जानते हैं सब कुछ, उन पे कोई केस नहीं है, ठीक है। हमारे शहबाज शरीफ साहब एल हैं, ये एल हैं, इन पे कोई केस नहीं है। इमरान खान का क्या कसूर? सर आवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं वो। आवाम के मुंतखब नुमाइंदे नहीं हैं, ये पीछे से सिलेक्ट किए हुए हैं। कौन कहता है आवाम के मुंतखब नुमाइंदे? अच्छा सर, ये मुख्तलिफ जमातों की तरफ से इस्लामाबाद में धरने दिए जाते हैं, तो इस हवाले से क्या कहेंगे कि ये धरने के वक्त की ज़रूरत है? धरने के वक्त की ज़रूरत नहीं, नई जमात की ज़रूरत है। जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब की नई जमात बन रही है, अवामी मुस्लिम लीग, वो अगर हिम्मत करें, आगे बढ़ें, लोग उनके साथ जाएंगे और इंशाअल्लाह मुल्क की तरक्की। अवामी मुस्लिम लीग में भी वही मुफ्ता इस्माइल है खुद, और पिछले गवर्नर्स जो मुख्तलिफ हैं वही है ना, कोई नया बंदा तो वो भी लेके नहीं आया। नहीं, इन्होंने तो तौबा कर ली है ना अब उससे, मुस्लिम लीग लोन से। अब ये आएंगे तो काम करेंगे, आगे काम नहीं करेंगे तो उनका साथ भी वही होगा जो इन लोगों का। हुकूमत की जानिब से पीटीआई पे पाबंदी लगाई जा रही है, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, पीटीआई पे अगर पाबंदी लगाई जा रही है तो ये बहुत ही अच्छा किया जा रहा है। उसकी रीज़न ये है कि पीटीआई जो सी अपनी सियासत कर रही है, वो हमारे सूबों में फ़र्क डालने के लिए कर रही है, ठीक है। वो नफ़रत पैदा कर रही है, नफ़रत नहीं होनी चाहिए। हमारे 4 सूबे हैं, ये हम सब भाई भाई हैं, ठीक है, तो ये अलग नहीं करना चाहिए। अब आप किसी भी ये जो जमातें बन चुकी हैं, नून लीग, पीपल पार्टी और पीटीआई, इसके अंदर ये है कि आप अगर किसी दोस्त से पूछते हैं ना, आपने किसको वोट डाली, तो वो कहता है अगर मैंने पीटीआई को डाली तो नून लीग वाला वो नाराज़ हो जाता है। नून लीग वाले को अगर वोट डाली है तो पीटीआई वाला नाराज़ हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जितनी भी सियासी पार्टियां हैं, ये सब एक होंगी तभी पाकिस्तान तरक्की करेगा। अपने मफाद के लिए आप हुकूमत मत करें, मुल्क पाकिस्तान के लिए हुकूमत करें। आप लोगों के अंदर मोहब्बतें बांटें कि भाई ये नून लीग वाला है या जो भी है, सबसे पहले पाकिस्तानी है, आप इसका पहले ख्याल करें। आप ये मत देखें, मैंने यहाँ तक भी देखा है कि लोगों ने जनाजे छोड़ दिए, लोगों के एक दूसरे की शादियों में आना छोड़ दिया कि ये पीटीआई वाली पार्टी का है, ये नून लीग वाली पार्टी का है, ये पीपल पार्टी का है, ठीक है। तो ऐसी सियासत ना मुल्क के लिए अच्छी है, ना पार्टी के लिए अच्छी है। आप मोहब्बतें बांटें, हम भी पीटीआई वालों के साथ हैं, हम नून लीग वालों के साथ हैं, जो भी जमात आएगी जिसको आवाम वोट देगी। सर, ये मुख्तलिफ जमातों की तरफ से ये एक तरीके का धरने का सीजन चल रहा है, तो इस हवाले से क्या कहेंगे कि धरने क्या इस्लामाबाद के लिए महफूज हैं या नहीं है? देखिए जी, धरना अगर कर रहे हैं, कोई भी एहतजाज कर रहा है, वो उसका हक बनता है, लेकिन आप मेन जो रास्ता है उसको ब्लॉक ना करें। ये मुसलमानों के लिए ही जो है ना, वो हमारे पाकिस्तानियों के लिए ही जो है ना, वो तकलीफ़ का बाइस बन रहा है। मैं आज खुद सुबह आया हूँ, मैं इस्लामाबाद में, तो फैज़ाबाद बड़ी दूर से मैं घूम के आया, डबल रोड से आया, एक ट्रैफिक जाम थी कि जिसमें कई लोग बीमार भी थे। आपका जो भी वो मुतालबात हैं हुकूमत से, आप उसको एक साइड पे, अब इस्लामाबाद बहुत बड़े बड़े ग्राउंड हैं, आप वहाँ पर बैठें, आप मीडिया वाले पहुँचेंगे, वहाँ पे उनसे पूछेंगे क्या मसला है, तो हुकूमत तक ये बात पहुँचेगी। ये होता है तरीक़ाकार
ना कि किसी को तकलीफ़ देकर आप जो अच्छा सर, अगर बात की जाए कि धरनों की, तो अंदर के मुतालबात और बाहर के मुतालबात क्या एक ही होते हैं, या अंदरूनी कुछ मुतालबात सियासी जमातों के अपने होते हैं जिसकी वजह से ये धरने दिए जाते हैं? देखिए, ये जो धरने दिए जाते हैं, कुछ तो हमारे आवाम को बीच में अंदर कोई और बात होती है, आवाम को कुछ और बताया होता है। अक्सर जो धरने में अब जो लोग आए हुए हैं उनसे भी आप अगर पूछें तो कईयों को पता ही नहीं होगा हमारा मौक़िफ़ क्या है, हम क्या किस मकसद के लिए यहाँ पर बैठे हैं। वो सिर्फ ये है कि ये फ़लानी पार्टी, हम इस पार्टी के साथ हैं, इस वजह से आए हुए हैं। सर क्या नाम है आपका? इमरान नाम है जी। हुकूमत की जानिब से पीटीआई पे पाबंदी लगाई जा रही है, क्या कहेंगे, पाबंदी लगनी चाहिए या नहीं? अवामी राय क्या है? मेरी राय तो यही है, बल्कि आवाम की राय अक्सरियत ये होगी कि किसी भी जमात पर, पाकिस्तान में जमहूरियत है, इस पर पाबंदी किसी भी जमात पर नहीं लगनी चाहिए। और इससे पहले इलेक्शन में भी जो पीटीआई के साथ सलूक किया, यह भी ज़्यादती है। अब जो अगर कोई करारदाद मंजूर कर रहे हैं इसके हवाले से, पाबंदी के हवाले से, तो ये भी आवाम के साथ और पीटीआई जमात के साथ भी ज़्यादती कर रहे हैं। अच्छा, कहा जा रहा है कि ये 9 मई के जो वाक़यात थे, इस हवाले से दहशतगर्दी की दफ़ात लगाई जाएंगी, तो 9 मई के वाक़यात के हवाले से अगर पाबंदी लगती है तो वो भी नहीं लगनी चाहिए? 9 मई के हवाले से भी अगर जमात की बात की जाए तो उसमें जमात का कोई कहना ऐसा कोई किरदार नहीं था कि जिस पे उस हवाले से पाबंदी लगी जाए। वो अलग बात है कि अगर आवाम को गुस्सा आ जाता है या किसी बात से वो मुतनशर हो जाते हैं तो आवाम का हक़ बनता है वो किसी को गुस्सा कर सकते हैं। लेकिन 9 मई में भी ऐसे कुछ ऐसे वाक़यात नहीं हुए हैं कि जिनकी मतलब बंदा मजम्मत करे या ऐसा करे। ये बस थोड़ी सी इंसान है, गुस्से का शिकार हो जाता है, तो इसमें ये इस हवाले से हुआ है, इसमें जमात का कोई कसूर नहीं था। तो फिर खान के साथियों ने उनको क्यों छोड़ दिया था अगर 9 मई में इस तरह के वाक़यात पेश नहीं आए थे? कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मीडिया पे या आवाम को बतानी ज़रूरी नहीं होती, साथी हों जो उन्होंने भी नहीं बताई हैं और वो बताना भी नहीं चाहते कि वो उनकी मजबूरियाँ होती कुछ, तो इस वजह से उन्होंने ये बातें बताई नहीं हैं। ये उनको भी पता है, हमको भी पता है, आप सबको पता है इस बारे में। सर, हुकूमत की जानिब से पीटीआई पर पाबंदी लगाई जा रही है, क्या कहेंगे, पाबंदी लगनी चाहिए या नहीं? नहीं, लगनी नहीं चाहिए, क्योंकि सारी जो सियासी पार्टियाँ हैं वो आज़ाद हैं, तो सब एक जैसी होनी चाहिए, एक जैसा सबको देखना चाहिए। अच्छा, अगर फ़र्ज़ करें हुकूमत की जानिब से पीटीआई पर पाबंदी लगती है तो अवाम की क्या राय होगी इस हवाले से? आवाम तो तकरीबन 70-75% ये कही कि नहीं लगनी चाहिए। अच्छा, पाकिस्तान में धरनों की सियासत भी हो रही है आजकल, 3 धरने आगे पीछे होंगे, तो एक तो फ़िलहाल हो रहा है, फिर अभी जमात इस्लामी का भी धरना होने जा रहा है, तो क्या कहेंगे कि इस्लामाबाद जैसे शहर में धरने होने चाहिए या नहीं? नहीं, होने तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर मजबूरी बन जाती है, अपने हक़ के लिए फिर धरने करने पड़ते हैं। कौन सा हक़, ये धरने वाले कौन सा हक़ लेना चाह रहे हैं? यानी कि धरने की वजह से वो जो अपनी बात है उसको मनाना चाहते हैं कि हुकूमत इसको मान जाए। सर, हुकूमत की जानिब से पीटीआई पर पाबंदी लग रही है, क्या कहेंगे, पाबंदी लगनी चाहिए या नहीं? नहीं, ये तो गलत है, ये तो इसमें तो बिल्कुल गलत है। यानी अवामी राय के मुताबिक पीटीआई पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए? नहीं लगनी चाहिए। आपने वो इलेक्शन में भी देख लिया है उनको कि इलेक्शन में क्या रिज़ल्ट हैं, जो सही रिज़ल्ट हैं वो आप चेक करें ना क्या है। अच्छा, कहा जा रहा है कि 9 मई की दफ़ात को शामिल करके पीटीआई पर पाबंदी लग रही है। 9 मई की बहुत सारी रीज़न्स है, इसमें क्या पता किस किस ने की है, बहुत सारी रीज़न्स हैं इसमें। अब कंफर्म तो नहीं है कि पीटीआई ने की है, पहले तहकीकात करें फिर देख लेते हैं, जिस पे हुआ उस पर लगा दें पाबंदी। क्या कहते हैं कि ये कोई ज़ाती अनाज या दुश्मनी निकाली जा रही है पीटीआई? ज़्यादा चांसेस तो यही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के हवाले से अवामी राय ये है कि किसी भी सूरत किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। हुकूमत अपनी ज़ाती अनाज की खातिर किसी जमात पर पाबंदी नहीं लगा सकती। आइंदा अवामी सोच के साथ एक बार फिर हाजिर होंगे, तब तक अवाम की सोच से मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।